મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલની પ્રેસ કોન્ફરન્સ. મહારાષ્ટ્રના ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ટેક્સટાઇલ મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલની મોદી શાસનના 9 વર્ષ ઉપલક્ષમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ. ચંદ્રકાંત પાટીલ આજે સમગ્ર દિવસ વડોદરાની મુલાકાતે છે. સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડોક્ટર વિજય શાહ સહિતના મહાનુભાવો પત્રકાર પરિષદમાં ઉપસ્થિત. ચંદ્રકાંત પાટીલ નિવેદન 9 વર્ષની ઉપલબ્ધિમાં લોકો સુધી પહોંચાડવા પ્રવાસની યોજના બનાવી. હું અગાઉ પણ વડોદરા આવી ચૂક્યો છું. 2014માં લોકોની ભાવના નિર્માણ પામી હતી. 2004થી 2014ના શાસનકાળને કારણે કૌભાંડોને કારણે લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠી ગયો હતો. મોદીજીએ 9 વર્ષમાં લોકો પ્રતિનિધિઓ માટે લોકોમાં વિશ્વાસ ઊભો કર્યો. લોકોમાંથી નિરાશા અને અવિશ્વાસનું વાતાવરણ દૂર કર્યું. ગુજરાતમાં મોદી સરકારના 15 વર્ષના બેકગ્રાઉન્ડને કારણે દેશભરમાં અમારા પ્રત્યે લોકોની આશાઓ હતી. पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व मार्गदर्शन प्रमाणे माननीय चंद्रकांत पाटील जी महाराष्ट्र सरकार हालना कैबिनेट मंत्री है. हायर एज्युकेशन, टेक्सटाइल, संसदीय बाबतों संभाळे छे. पूर्व में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख तरीके दायित्व तेमणे संभाळेलुं छे अने 13 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वडोदरा, महाराष्ट्र, विदर्भ और गोवा एना प्रचारक तरीके तेमणे कामगीरी करेली छे. अत्यारे पूनाथी विधायक तरीकेनी मंत्री तरीकेनी जवाबदारीमां छे. वडोदराना आंगणे उतार्या छे. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 26મી મે 2014ના રોજ માનનીય પ્રધાનમંત્રી તરીકે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પદભાર સંભાળ્યો અને 26મી મે 2023ના રોજ એને 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. 10મા વર્ષમાં આપણે મંગલ પ્રવેશ કર્યો છે. 9 વર્ષના સમયગાળામાં माननीय मोदी साहेब नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार 9 साल बेमिसाल 9 भारत 9 वर्ष આવી ટેગલાइन સાથે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમોની શરૂઆત કરી છે. આ પહેલા પણ એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં માનનીય સાંસદશ્રી અને માનનીય મેયરશ્રી દ્વારા 30મી થી 30 જૂનના કાર્યક્રમો વિશે વાત પણ કરવામાં. भारतीय जनता पार्टी गुजरात मुख्यमंत्री तरीके जયારે हमने कामगीरी शुरू करी त्यारथी लईने 2023 सुधी कोई एक पण वखत समग्र मंत्रीमंडळ पर भ्रष्टाचारनो एक पण आरोप न આવ્યો હોય એવી આ એકમાત્ર સરકાર છે. આ સરકાર કે જેણે સમાજના દરેક વર્ગને પોતાની સાથે જોડવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની યોજનાઓના માધ્યમથી પ્રયત્ન કર્યો છે. आ सरकार के जेने वचेटियोना राजने सदंतर खत्म करी नाख्यो छे. आ सरकार के जेने बेनिफिशियरी ने सीधो ज लाभ एना एकाउंट में मळे
એવો પ્રયત્ન કર્યો છે આ સરકાર કે જેને કારણે આજે ભારતીય નાગરિક એના પાસપોર્ટનું મહત્વ વધ્યું છે। આ સરકાર કે જેણે ખરાબમાં ખરાબ સમય વિશ્વમાં ચાલતો એવા કોરોનાના સમયગાળામાં પણ દેશવાસીઓને મફત વેક્સિનેશન આપવાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે અને આ સરકાર કે જેણે સંરક્ષણના ક્ષેત્રમાં બહુ જ મોટી હરણફાળ કરી છે ત્યારે 9 વર્ષની આપણી કેન્દ્રની સરકારના સંદર્ભમાં વિચારો મૂકવા માટે આજે મહારાષ્ટ્રથી ખાસ પાટીલ સાહેબ પધાર્યા છે ત્યારે ગુજરાત રાજ્યનું સાંસ્કૃતિક પાટનગર છે। મહારાષ્ટ્રના પૂના અને ગુજરાતના વડોદરા વચ્ચેની જો કોઈ એક સામ્યતા હોય તો પૂનામાં જેટલી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓ રહે છે પર્સન્ટેજમાં એટલી સંખ્યામાં વડોદરામાં મરાઠી લોકો વસવાટ કરે છે। એવા શહેરમાં આપનું સાહેબ સ્વાગત છે અને હું અમારા માનનીય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટને વિનંતી કરું છું કે 9 વર્ષની ઉપલબ્ધિના સંદર્ભમાં પ્રેસ અને મીડિયામાંથી જે મિત્રો આવ્યા છે એમને માર્ગદર્શન આપે। માનનીય શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ। મિત્રો, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा सुशासनના 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા। આપણે 1લી તારીખે મળ્યા હતા અને આપ સૌએ પ્રધાનમંત્રી શ્રીના સુશાસનના 9 વર્ષની જે કઈ ઉપલબ્ધિઓ છે આપના દ્વારા અહીંયાથી મૂકવામાં આવી અને આપે પ્રજાજનો વચ્ચે પણ એ મૂકી। આખા 1 મહિનાનો પ્રવાસ ચાલી ગયો છે અને સરકારની ઉપલબ્ધિઓ જુદા જુદા તબક્કામાં લાભાર્થીઓને મળવાનું, શ્રેષ્ઠીઓને મળવાનું આ કાર્યક્રમના ભાગ હેઠળ રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વએ નક્કી કર્યું કે 2 એવા બીજા રાજ્યોમાંથી પણ મંત્રીગણ હોય, કેન્દ્રના મંત્રી હોય અને તેઓ એક લોકસભા એમને સોંપવામાં આવે અને તેઓ પોતે પણ પ્રવાસ કરે અને એના ભાગ સ્વરૂપે આજે મહારાષ્ટ્રના કેબિનેટ મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલજી આજે સવારથી આપણી વચ્ચે છે। અલગ અલગ કાર્યક્રમો દ્વારા લોકોને મળવાનું પણ થયું, મંદિરમાં દર્શન કર્યા અને આજે આપની વચ્ચે પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કરેલા અનેક 9 વર્ષના વિકાસના કાર્યોની આપની વચ્ચે વાત પણ કરવાના છે। अभी जो योजना चल रही है उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय जी और माननीय सांसद महोदया ने विस्तार से बताया कि माननीय मोदी जी के पंतप्रधान पद को 9 साल पूरे हुए, तो इस 9 साल में जो उपलब्धियां है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रवास की योजना बनी है। उस योजना के तहत मैं यहाँ आया हूँ, इसका विस्तार से उन्होंने बताया ही है। मुझे खुशी है कि बड़ौदा शहर की मैं यदि यह कहूँ कि हर गली को मैं जानता हूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 82 टू 95 13 साल हर 4 महीने में एक बार बड़ौदा में आता रहा। मैं विद्यार्थी परिषद का क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहा, बाद में आखिरी के दिनों में विद्यार्थी परिषद का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना। तो कई उस जमाने के विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज समाज के विविध क्षेत्रों में बड़े हुए हैं, तो उस समय साथ में उनके मैंने काम करने का मौका मुझे मिला। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ तो मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ। मैं योजनाएं क्या क्या मोदी जी ने बनाई और यशस्वी की इसके आंकड़ों में तो जाऊंगा, लेकिन उसके बजाय मैं कुल मिलाकर जीवन के विविध क्षेत्रों में बेसिक परिवर्तन उन्होंने क्या लाया वो आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। मुझे ये मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना कम और आपके प्रश्न सुनना ज़्यादा ऐसा होता है। फिर भी मुझे थोड़ी तो जिसको कहेंगे कि शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे महत्व की बात 2014 को हम यदि याद करते हैं तो लोगों के मन में एक भावना निर्माण हुई थी, जिसमें 2004 से 14 का एक ऐसा सरकार बना था जिसमें अलग अलग प्रकार के घोटाले हर रोज पढ़ कर सुनकर लोग हैरान हो गए थे। लोगों का लोकशाही डेमोक्रेसी पर से विश्वास उड़ गया था
और वोटिंग परसेंटेज ऐसे ऐसे हर चुनाव में 2014 में पंतप्रधान होने के बाद 9 साल के उपलब्धि में यह उपलब्धि है कि उन्होंने सर्वसामान्य व्यक्ति के मन में लोकशाही के बारे में आस्था निर्माण की, लोक प्रतिनिधि के बारे में विश्वास निर्माण किया कि लोक प्रतिनिधि यानी भ्रष्टाचारी, वो पैसा ही खाएगा, वो स्वयं इस देश के पंतप्रधान भी मान रहे थे कि जब हम 1 रुपया नीचे छोड़ते हैं तो 84 पैसा ये बीच में गायब होता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की मन की निराशा निकालने में मोदी जी यशस्वी हुए। ये बहुत लोकशाही समृद्ध करने के लिए बड़ी बात है। 14 में जब मोदी जी का नाम पंतप्रधान के रूप में सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया कि हम मोदी जी को पंतप्रधान बनाने जा रहे हैं, तो लोगों में एक उत्साह आया, क्योंकि 15 साल के गुजरात के कामों की एक बैकग्राउंड उनके साथ में थी और लोगों को लगा था अच्छा ये व्यक्ति पंतप्रधान बनेगा तो देश का कुछ भविष्य अच्छा है। लोगों ने बहुत अच्छे वोट्स दिए और हम जानते हैं कि 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद देश में सत्ता आती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी को 282 मिली। मैं पहले ही बताया हूँ कि आंकड़े न बताते हुए मैं इस प्रकार के पार्श्वभूमि बताने में ज़्यादा समय देने वाला हूँ। उसमें 89 से लेकर इस देश में कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी। नरसिंह राव की भी नहीं बनी, मनमोहन सिंह जी भी नहीं बनी। सबको किसी ना किसी को साथ में लेकर ही सरकार बनानी पड़ी। द फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर 89 2014 गवर्नमेंट कि जिसमें मोदी जी को 272 की जगह 282 मिले। एनडीए अलग, एनडीए जोड़कर तो वो संख्या 300 सवा 300 होती थी। फिर और एक बात इंडियन डेमोक्रेसी में है कि 5 साल में आप कितना भी अच्छा सरकार चलाओ, 5 साल के बाद लोगों के मन में कुछ ना कुछ कंप्लेंट निर्माण होती है कि आपने भाई ये नहीं किया, हाँ ये किया अच्छा है लेकिन ये नहीं किया, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये एंटी इनकम्पेंसी के कारण फिर गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं होती या सीटें कम होती है। लेकिन 5 साल में मोदी जी ने लोगों के मन में अपने कामों के कारण विश्वास ऐसा निर्माण किया जिस विश्वास के कारण सरकार भी रिपीट हुई और सीटें भी बढ़ी, 282 की 303 बनी। तो मुझे लगता है कि योजना बताना, आंकड़े बताना ये आवश्यक है ही नहीं, जो एक आखिरी में 2-3 सेंटेंस में बताता हूँ। लेकिन विश्वास निचले आदमी तक ये निर्माण हुआ कि ये आदमी अब देश का परिवर्तन करेगा, हमारे जीवन में सुख लाएगा, सुरक्षा लाएगा सबसे महत्व की बात, और अपने देश को दुनिया में बड़े ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। ये विश्वास के कारण ही गवर्नमेंट रिपीट भी हुई अगेन फ्रॉम 1989 फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 अपने बलबूते पर बने, किसी को साथ में ही लेना नहीं पड़ा। जो आए वो एनडीए में थे, में ये सरकार रिपीट भी हुई और सीटें भी बढ़ी। ये बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी मोदी जी की विशेषता यह रही 9 साल में, उन्होंने हर सामान्य व्यक्ति को, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला, आदिवासी इलाके में रहने वाला हर सामान्य व्यक्ति को देश के बड़े विषयों में पार्टिसिपेट किया। स्वच्छता ये इसका बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि ये करो वो करो, फिर वो नारों तक ही विषय रहता है, फिर लोक प्रतिनिधियों के तक विषय रहता है। मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का अभियान बनाया। इस देश में 2014 तक स्वच्छता ये किसी के प्रायोरिटी का विषय नहीं था। 14 के बाद हमारा ऑफिस स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा घर स्वच्छ रहना चाहिए, हमारी कॉलोनी स्वच्छ रहनी चाहिए। फिर अलग अलग कंपटीशन लगना शुरू हुई कि अच्छी स्वच्छ कॉलोनी को अच्छा प्राइज मिले। करते 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 जिस विषय के लिए दुनिया के लोग हंसते हुए स्वच्छता के लिए अभियान करना पड़ता है, लेकिन वो आवश्यकता थी तो उन्होंने पीपल्स मूवमेंट बनाई। तो ये और एक विशेषता मोदी जी के है 9 साल के कामों में कि उन्होंने सर्वसामान्य व्यक्ति को देश के, कोविड उसका बड़ा उदाहरण है। कोविड में उन्होंने देश की 137 करोड़, अभी फिगर और आनी है जो 141 करोड़ से आगे हुई, करोड़ जनता को लॉकडाउन के लिए तैयार किया। इट वॉज नॉट सो पॉसिबल टास्क, उन्होंने तैयार किया। सबको यह कन्विंस किया कि अपने को ये करना पड़ेगा। कोई ने विरोध नहीं किया, कोई ने धरने नहीं किए, कोई ने प्रदर्शन नहीं किया। लोगों ने मोदी जी का सुना
ये मोदी जी की विशेषता है कि मोदी जी ने अपने बारे में लोगों के मन में विश्वास निर्माण किया कि भाई ये बोलते हैं तो करना है। उसमें पक्ष विक्ष सारे बाजू में रह गए, सारों ने माना, सारों ने लॉकडाउन किया, हम बच गए। इतने बड़े देश में यदि कोविड की सूचनाओं का अमल हम नहीं करते तो देश की क्या स्थिति होती हम जानते हैं। ऐसे ही एक बड़ा विषय बोलकर मैं फिर जो नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपके माध्यम से लोगों को चाहिए वो बताता हूँ। वह है इस देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने हैबिचुअल किया। पॉसिबल ही नहीं था। आज किसी छोटे गांव में फ्रूट बेचने वाले, फल बेचने वाली महिला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगी। उसको ध्यान में आता है कि वो बताती है कि भाई क्यों पैसा किसी में लेकर घूमते हो। इसके लिए आवश्यक थे हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट, वो नहीं थे। ये ध्यान में आया जब नए 48 करोड़, अब मैं फिगर शुरू करता हूँ, 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल गए, उनके बैंक में अकाउंट नहीं थे। जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो बैंक में सब्सिडी ट्रांसफर कैसे करेंगे, है तो व्यापारी बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। 48 करोड़ 27 लाख ये अब तक जनधन के खाते खुले। जिस जनधन के खाते पर जीरो बैलेंस, यह कंडीशन है, जीरो बैलेंस है, बैलेंस नहीं रखा तो भी चलेगा, इससे सामान्य व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर पाया। और शुरू हुआ हर सब्सिडी को हम डीबीटी करेंगे, अकाउंट में डालेंगे। 9 साल में 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ इतनी अमाउंट लोगों के अकाउंट पर अलग अलग प्रकार के योजना के तहत गई। योजना में बताना है जिसकी अमाउंट गई, तो कोई महिला गर्भवती होती है तो मातृवंदना नाम से उसके अकाउंट पर 6,000 रुपये जाना। हर विषय में लॉजिक कि ये हमारी गरीब बहन जब गर्भवती होती है तो आखिरी के दिन तक उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि वो काम नहीं करेगी तो घर नहीं चलेगा। तो उसको एक 6,000 रुपये दिए जाए ताकि 2-3 महीने वो थोड़ा आराम करे, कुछ अच्छी दवाई ले, कुछ कच्चा खाना खाए। तो ये 6,000 रुपये पहले कैसे देते थे, तो वो कैश से देते थे। बार बार उस सरकारी ऑफिस का अधिकारी उसको चक्कर लगाना पड़ता था, फिर उसमें से वो 100 रुपया 200 रुपया निकालता था। अभी निकालने का विषय नहीं, 6,000 रुपये के लिए आप एलिजिबल है, आपके अकाउंट में सीधा जाएगा। तो ऐसे मातृवंदना जैसे काफ़ी, जैसे बहुत लंबी नियमों की यादी रहती है। फिर वो महाराष्ट्र में आकर, महाराष्ट्र में उनका कानून बन रहा है, बाकायदा कानून बन रहा है, हर यूनिवर्सिटी का अलग से कानून। उस कानून में उनको चौकट दी जाती है, इस चौकट के बाहर जाना नहीं। तो उनके पैसे लगाकर वो यदि बनाते, जैसे चौकट क्या लगाते हैं, फीस को मॉनिटर हम करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक दूसरे से इस प्रकार के शिक्षा में बहुत अग्रणीय है। तो लगभग 70% से ज़्यादा विद्यार्थियों की फुल या हाफ फीस हम लोग भरते हैं। तो वो प्राइवेट वालों में ज़्यादा फी लगाई भी, लगा नहीं सकते, उसके लिए एक अलग से रिटायर्ड जज की कमेटी होती है, लगाई भी तो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करती है।